Well, gentlemen, your group discussion topic is women education, public girls education. Okay, gentlemen, today's our topic is women education, and we can divide our topic in three parts. First is women education Three and parts. information. Rajat, three Three part, parts. three parts. ऐसे लगाओ तुझे. Continue. Parts, sir, three parts बोले रहा. Continue. And first is the information of women education, and second is why girls are not in school, and third is reason why all girls need an education. So let's we start to its information. Education is an important tool which equip you to take well-informed and meaningful decision. One of the most important benefits of girl education that through this our country's future will be bright and better. And if more and more women become financially strong, thereby reducing poverty. And what's your view, gentlemen? Yes, Rajat, I And I agree think with it you. also plays Education a is one very of the most powerful tools to enable girls to avoid child marriage and fulfill their potential. And the longer a girl stays in school, the less likely she is to be married before the age of 18 and have children during her teenage years. It also gives the girls to develop the skills, knowledge, and confidence to make informed decisions, including when they will marry. With quality of 12 years of education, girls are up to 6 times less likely to marry as children compared to those who have little or no education. Estimates show that g- if all girls had access to secondary education, child marriage would drop to 68%. yes. I think बहुत बढ़िया. educated women also help us, as we have noticed that usually a child interacts more with his mother instead of the father. So if the mother is educated, she can also teach the children and educate them further, which in decisively makes it a very educative society. What's your view? गुड. धनंजय थोड़ा कम बोले. इसको 30 सेकंड. तुम सारे ये 10 से 12 सेकंड बोले हो. इसको 20-30 सेकंड तक लेके जाओ जो तुम पार्टिसिपेट करते हो ना. कम से कम 30 सेकंड का रिप्रेजेंटेशन तो हो जाए. बोलना स्टार्ट करें. अनुप्रीत ने बहुत जबरदस्त बोला. रजत ने बहुत बढ़िया बोला. तुम बहुत 10 सेकंड में ही ब्रेक लगा गई. ये अच्छा नहीं है. तो इसको 30 सेकंड तक 40 सेकंड तक जरूर खींचो जब आप पार्टिसिपेट करते हो. ठीक है. अगली जब बार बोलोगे तो 30 सेकंड से कम नहीं बोलना है. कंटिन्यू करो शहबाज. Okay. Okay, sir. इसका वेट कर रहे हो. जिसको बोलना बोलिए. So okay, gentlemen, let's move to its रजत next सुनो. point. Why? ऐसे ऐसे Yes, sir. जब लग रहा है कि पूरा ग्रुप शांत है तो लीड ले जाओ आगे. ठीक है ना. लीड ले जाया करो. Yes, sir. जब सारे लोग चुप बैठे तो लीड ले जाओ. फिर बोलना स्टार्ट करो. फिर वेट किसका कर रहे हो. कंटिन्यू करो. Yes, sir. Why girls are not in school? And its reason is earlier marriage, and then pregnancy, and then violence in school and at home, and the child domestic labor, and the poor sanitation, and too few female teacher in school. uh, it is this is the big barrier, and the finally old thing that because they are girl, that's why girl are not in school. And what's your view, gentlemen? Yes, I think that पार्टिसिपेशन 15 old. सेकंड. पार्टिसिपेशन 15 सेकंड का. जब तुम्हारा 30 तक जाना है. ठीक है ना. Yes, तो थोड़ा नॉलेज को Yes, बढ़ाओ. I yes, think that कंटिन्यू. the patriarch. कंटिन्यू. Yes, I think the main role is of the patriarchal society, as in earlier times we noticed girl education was not given much importance, as people had an image that she's a girl, she'll get married, she'll go to another house, so there's no need to educate her. But as we are noticing that with time our society is evolving, and people are starting to believe in girl education, because if girls are educated, they make the society better. They help in domestic work, as well as they can earn money, so they also support the family financially. And early marriages are also one of the important factors why girls are not educated. And also the illiteracy also plays an important role,
because if the parents are not illiterate, they do not realize the importance of education and the impact it has on a children's life. What are your views? दैट्स गुड धनंजय, आपकी बार बेटर है। इतना इतना आपको हर बार बोलना चाहिए। देखो कोई ये पैमाना नहीं है कि हमें कितना बोलना है, लेकिन कम से कम 30 सेकंड का एक शॉर्ट तो होना चाहिए, उससे कम तो फिर कम ही लगता है, ठीक है ना? चलो Okay, sir. स्वाति, क्या बात, कहाँ गए आप? स्वाति आज बोल नहीं रही क्लास में, व्हाट हैपेंड? Okay, gentlemen. So move to its next point. Reason why all girls need an education. The first is through education increase economic growth, and the second is better wages and jobs for women, and it save the lives of children and their mother, and smaller and more sustainable family if women will educated. So women follow the population control rule, and through education reducing rates of HIV, AIDS, and malaria, and fewer through education fewer child marriage if and empowered women also. And what's your view, gentlemen? I think we still have a long way to go in this field, as we can notice that even though many women are now educated and they work at very high levels competing with men, but it is also noticed that their pay scale is usually different than men, and women are usually underpaid for the same work that men are overpaid for. So that also needs to change, because in society we lead by example. If we set an example, people tend to follow that. It brings out the practicality in things, but if we don't do that, I don't think we'll succeed as a society. धनंजय सुस्त सा लग रहा है यार, तू सुस्त सा लग रहा है, Yes, sir. सुस्त नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, No, sir. लग रहा है सुस्त नींद सी आ रही हो, एक्टिव लग रहा है। No, sir. कल को नहाना कंपलसरी कर दूं क्लास में, लेकिन नहा के बैठो जरा। चलो कंटिन्यू करो, अभी वीडियो देखना, मैंने तेरे को जूम किया हुआ है। रजत भी ठीक लग रहा है, रजत में दिक्कत नहीं आई, अनुवित भी ठीक लग रहा है। मुझे थोड़ा सा सुस्त लगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना खुद का कि ये से कैसे दिख रहा हूं मैं। चलो कंटिन्यू, स्टॉप करते हैं, ठीक है, बहुत है। अब अपने कमेंट सुनो सारे। स्वाति का सर नेटवर्क इशू है, वो सुन नहीं पाई शायद हमें। अच्छा बोलो सभी, ऐसे ही बोलना होता है। बस थोड़ा सा धनंजय को मुझे सुस्त सा लगा, रजत तुम्हारा पार्ट में ठीक था, अनुकृत का पार्ट में जबरदस्त था, लड़का बोलने लग गया है, मुझे इसी बात की बड़ी खुशी है। 1 महीने बाद इसने बड़ी मुश्किल से इसको सुनने को मुझे मिला है। और अनुकृत के पास एक प्लस पॉइंट है, इसकी आवाज बहुत भारी है। जब ये बोलता है तो ग्रुप के बाकी मेंबर वैसे ही चुप हो जाएंगे अपने आप में। जो टिमी टाइप पर्सनैलिटी होगी ना, अगर ये थोड़ा लाउडली बोलेगा ना तो बाकी ऐसे लगेगा कि हाँ किसी ने बोलना स्टार्ट किया है, ये फोकस खींच लेगा जीटी को, इसका प्लस पॉइंट है। जिसकी आवाज सॉफ्ट है उसको दिक्कत आती है जीडी में। हमारे पास ऐसे हैं बच्चे जिनकी आवाज सॉफ्ट है, जैसे अपने पास अपनी वो है लड़की यमुनानगर से अंजू, आई थी क्लास में, शायद वो फिर चली गई। अंजू है, उसकी आवाज सॉफ्ट है। धनंजय की आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट लगती है मुझे कई बार, है ना, मासूम सा बच्चा लगता है मम्मी पापा का। और देख अनुवृत को देख, बिल्कुल खूंखार ऐसे बैठा है, अभी खा जाएगा किसी को पकड़ के। है खतरनाक सा बच्चा चाहिए मुझे, शरीफ सा बच्चा नहीं चाहिए। अब धनंजय देख लो कितना क्यूट सा लग रहा है ना। तो भाई थोड़ा सा एक्टिव रहना, एक्टिव मतलब आवाज में भारीपन तो नेचुरल है, इसको तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा लाउडली बोलने की कोशिश करें। धनंजय आपकी आवाज में सॉफ्ट रहती है, डाउन रहती है पिच बोलने की। और धनंजय तो हमारी एलएमजी है, ये तो मशीन गन की तरह चलता है, टक 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 टक, पता नहीं कैसे किसने आपको ऐसा बढ़ाया है। स्वाति का ठीक है, सुन पा रही है। शेफाली भी ठीक बोलती है हमारी क्लास में, दीक्षा भी ठीक बोलती है, एंड अंजू को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। धनंजय को भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत की है बोलने में। एंड और कौन कौन है हमारी क्लास में? एक लड़की है प्राची शर्मा, राजस्थान से, वो आएगी अपनी क्लास में। अभी वो ओलिविन से तैयारी कर रही है, वो हाथ से करने का फिर आपकी क्लास में आएगी। वो भी लड़की बहुत जबरदस्त मिली हमें, बोलने में वो भी बहुत फास्ट है। एंड अवंतिका भी बहुत फास्ट है बोलने में, वो भी जाने नहीं देती किसी को आगे।
तो एक ये नेचर होना चाहिए हमारा कि हम बोलने में थोड़े से एक्टिव रहें, क्योंकि जीडी में हम पिछड़ जाएंगे और जीडी में नहीं, ग्राउंड के बहुत सारे टास्क में पिछड़ जाएंगे अगर बोलने में थोड़ा सा तेज नहीं है तो। अच्छे होते हुए भी हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में स्मार्ट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा धनंजय थोड़ा सा। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे और कल से हम नया टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले तो चलते ही रहेंगे हमारे, डेली 10-10 वर्ड हम बैठ के कर रहे हैं। डेली हम एक जीडी 10 मिनट की ही शॉर्ट लेंगे। डेली एक बच्चे का इंटरव्यू लेंगे कल से। आज मूड नहीं था, वैसे ज़्यादा मुझे इंटरव्यू लेना है, आज नहीं लेंगे लेकिन कल से कंटिन्यू करेंगे। और एसडीटी जिनका डिस्कस नहीं हुआ है, जिनका मैंने फाइनल बोला कि अभी आपका फाइनल नहीं है, उनको इम्प्रूव करना है। ये स्वाति का फाइनल बोल दिया है, दीक्षा का फाइनल बोल दिया, वो फाइनल हो चुका, उसमें कोई चेंज अभी करने की जरूरत नहीं है। एंड आप लोग भी अपना एसडीटी पोस्ट करें, अपडेट करें। असाइनमेंट आपको दे दी है। एफ सीरीज तक अगर नहीं की है तो एफ सीरीज तक सारे के सारे बैठ करके पोस्ट करो। एफ सीरीज 10 वर्ड करने से, केवल 10 वर्ड, ABCD कंप्लीट और एफ के केवल 10 वर्ड। 15 मिनट 20 मिनट का काम है, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं है, सारा हो जाएगा। एंड भाई कल हम एक नया टेस्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कल हम उसको पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में लेते रहेंगे अगले महीने के एंड तक। इस महीने के एंड तक, अभी तुम्हारा महीना पहले 1 से 1 का चलता था, अब तुम्हारा महीना 10 से 10 का हो गया भाई। मतलब कि आज 10 तारीख हो गई है और तुम सबका 1 महीना आज कंप्लीट हुआ पढ़ने का, ठीक है। और 1 महीने में हमने केवल 4 ही टेस्ट करने थे और हमारे 4 टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ कुछ बच्चों की, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट्स नहीं किए। अदरवाइज हमारा जो टारगेट आज अचीव होना चाहिए था वही होना चाहिए था कि हमारा सबका वैट जितना भी हमने किया है ई सीरीज तक सबका कंप्लीट होना चाहिए, सबका एसडीटी फाइनल हो जाना चाहिए था आज की डेट तक, और सबका 1-2 इंटरव्यू आज तक फाइनल हो जाने चाहिए, यानी कि इंटरव्यू सबके हो, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस किसकी हुई है इंटरव्यू तुम्हारे में सभी मेरे साथ हुई है? किसी की? स्वाति की हुई है, बस धनंजय की हुई है, 2 की हुई है। नहीं इस महीने में, इस महीने की बात कर रहा हूँ मैं। सर मैं बोल रहा हूँ नहीं हुई मेरी। नहीं हुई है ना, धनंजय की हुई ना, अनुकृत की हुई ना सर मेरी हुई। ना आपकी हुई। बताओ, एक बच्चे की हुई है तो होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हो? सफाली की होगी, सफाली की हो गई है। सफाली ने अपना इंटरव्यू दे दिया है 2 बार, चीजें 2 बार दे चुकी है, 1 बार दिया था उसमें। तो ये हो जाना चाहिए था, ये टारगेट अचीव हमने कर लेना चाहिए था इस महीने में, जो कि नहीं हुआ है। तो इस टारगेट को अब हम आने वाले इस वीक के पहले 3 दिन में, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिन में अचीव करेंगे। इन 3 दिन में हमें क्या क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें, आज संडे है, सुन पा रहे हो? यस यस सर। सर। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ ठीक है। आज सबसे पहले एफ सीरीज तक के 10 वर्ड ABCDE कंप्लीट और एफ के 10 वर्ड एक पेज पे लिख के नीट एंड क्लीन अपलोड करेंगे, जिसने नहीं किया है। जो भी अपलोड करेगा उसके में कल सबसे पहले इसी को चेक करेगा, ठीक है। कल अब हम क्लास में 4 बंदे हैं, कल 2 बंदे का मुझे इंटरव्यू कनेक्ट करना है, कोई भी 2। परसों को फिर नेक्स्ट 2 का करें। तो मुझे सबका इंटरव्यू बढ़िया वाला है, बढ़िया वाला जबरदस्त वाला इंटरव्यू लेना तुम्हारा है। तो कल कौन कौन रेडी होना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, मुझे बता दो। रजत एंड स्वाति, ठीक है डन। कल अपने इंटरव्यू के लिए रेडी रहना और आप मुझे दोनों अपना PIQ फॉर्म व्हाट्सएप करेंगे आज, ताकि मैं उसमें क्वेश्चन बना सकूं, ठीक है। और मंगलवार को अनुप्रीत एंड धनंजय, आप दोनों का इंटरव्यू रहेगा, डिसाइडेड है। आप भी अपना PIQ फॉर्म, अगर नहीं है तो मेरे से ले लेना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सभी को नया PIQ फॉर्म। उस तरीके की जानकारी जो उसमें पूछी गई है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या अपलोड कर देना। अपने PIQ फॉर्म में चेक तो करना ही है। इंटरव्यू अपने जो फोल्डर है वीडियोस के, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल द PIQ फॉर्म। मैंने बताया बड़े अच्छे से कि कैसे PIQ फॉर्म फिल करना है, मेरे फोल्डर में जाकर देखना नोट्स कोर्स में, उसको वीडियोस को देख लेना और वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे लिख के मुझे आप अपलोड करें, ताकि आपके क्वेश्चन निकाल सकें। तो आने वाले 2 दिन में, कल और परसों, हमारे इंटरव्यू हो चुके हैं। हमके जो बाकी बचेंगे हमारे बच्चे, जैसे दीक्षा है और दीपांशु है, ये 2 लोग और हैं, इनका हम
बुधवार को प्लान कर देंगे इंटरव्यू। और जीडी तो चलती रहेगी, डेली एक टॉपिक चलता रहेगा रूटीन में, बैठ भी 10-10 वर्ड रूटीन में चलते रहेंगे। और इंटरव्यू प्रैक्टिस हमारी फिर एक बार होने के बाद फिर दोबारा से एक एक को पकड़ेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में रखेंगे। डेली इंटरव्यू लिया करेंगे 10 मिनट का, 15 मिनट का डेली। पहले एक बार ढंग से लेके आधा घंटा अच्छे वाला, फिर डेली रूटीन में 10 मिनट का रहेगा, वही बहुत है। एक बार तुम्हारा आधे घंटे का हो जाएगा, फिर जो तुम्हारे वीक पोर्शन होंगे ना उनको पकड़ लूंगा। जैसे मान लो रजत का वीक पोर्शन हॉबीज का है, तो फिर अगली बार जब इसका 2-3 दिन बाद टर्न आएगी इंटरव्यू, तो उसको हॉबीज पे ही पकड़ लूंगा 10 मिनट। तो जो तुम्हारे वीक पोर्शन होंगे उन पे ही फोकस रहेगा आने वाले टाइम में। तो बहुत बढ़िया से मेच्योरिटी आ जाएगी तुम्हारे इंटरव्यू में। ये मेरे को छोड़ दो, ये मेरा काम है। तो बस होमवर्क करते रहो। हमारा इंटरव्यू का टारगेट इसलिए अचीव नहीं हुआ, जिन बच्चों का इंटरव्यू बोलता वो अगले दिन इंटरव्यू में आते नहीं थे। ऐसा भी 2-3 बार हुआ है। जिनका इंटरव्यू रखा, जैसे अवंतिका का रखा, अन्नू पंजाब का रखा, वो आए नहीं, भाग गए। दीपा का रखा, वो भाग गई। पल्लवी का रखा, वो चली गई। जैसे अनुभव का बच्चे, तो हो चुका है। अन्नू का होश हुआ था, फिर पहले दोबारा हुआ था। पहले हुआ था, काफी टाइम पहले। वो एक फाइनल नहीं है ना, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो डेली हमारा, दूसरी अन्नू मैम का। हाँ, अनु बनवाला का इंटरव्यू था वो। चलो वो उस टाइप के इंटरव्यू थे, क्लोज थे। वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब लग रहे थे, तो टाइम बाद आ जाएंगे। कुछ इश्यूज में पजल है अभी लाइफ की, तो वो ठीक करने के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो भाई कल इंटरव्यू होगा। जीडी का टॉपिक नया सेंड कर रहा हूँ, वेट सीरीज कंप्लीट कर लो, अपना एसटीटी अपलोड कर दो। अगर ढंग से नहीं है, सारे अपने, जैसे रजत, धनंजय, अनुकृत, जो भी मुझे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अपना एसटीटी का असाइनमेंट दे रहा हूँ, वहां जाके अपना एसटीटी अपलोड करो। सर एक डाउट था बोलिए। सर, जैसे दोस्त तो बहुत सारे थे, तो सबका अलग अलग ओपिनियन भी तो हो सकता है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। आप क्या सोचते हैं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते होंगे? आपको क्या लगता है आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो ओपिनियन डालना होता है, एक एवरेज सा, कॉमन सा। डेफिनेटली ऑब्वियसली सबके दोस्त अलग अलग सोचते हैं। हमें एक जर्नल सा ओवरव्यू देना होता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। उनसे पूछना नहीं है जाकर के तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा आपने इमेजिन करना है। ठीक है, और कोई डाउट तो पूछिए। तो आज का होमवर्क में असाइनमेंट दे रहा हूँ, अपने असाइनमेंट चेक कर लेना थोड़ी देर तक, 15-20 मिनट के बाद, और उसको कंप्लीट करेंगे सभी। और जो छुट्टी मारेगा ना, 1000 फाइन रखूंगा उसको, बिना बताए छुट्टी मार जाएगा 1000 रुपया फाइन रहेगा। 1000 लेके अगली क्लास में एंट्री दूंगा, छुट्टी मत मारना। अगर मारनी पड़ जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं नहीं आऊंगा, जैसे दीक्षा ने मैसेज कर दिया, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं, मुझे छुट्टी मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता के मारो। फिर दूसरा, अगर नेटवर्क का किसी ने बहाना बनाया तो टेक्स्ट मैसेज करो। टेक्स्ट नहीं कर सकते, मैसेज तुम्हारे पास नहीं है, तो कॉल करके बताओ कि सर मैं छुट्टी पर मैं नहीं आऊंगा। मेरे पास सूचना पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। व्हाट्सएप पे करो, कॉल करो, टेक्स्ट करो। बिना बताए छुट्टी मार गए, अगली क्लास में पहले गूगल पे नंबर सबको पता है मेरा, उसे फीस सबमिट करना, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। ठीक है, ना पूछूंगा क्यों नहीं आया। तो तुम्हारे 1000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे तो मैं क्यों भाई, फिर मैं चुप, मेरी जेब गर्म हो जाएगी तो मैं चुप रहूंगा, फिर बोलूंगा ना, फिर तो चाहूंगा कि तुम ऐसा करें, हर बार करें। रूल है अपनी क्लास का, एक अपसेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 1000 फाइन। और ये सीरियसली लेना, इसको मैं चार्ज करना स्टार्ट करूँ सबसे, अब Yes. बच के रहना मेरे से। ठीक है, सभी को जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद सर। सर धनंजय, जीडी को जरूर देखना तुम।